right, we just got out of that because we are getting just live pictures of the Chief Minister, Mamata Banerjee, the TMC Supremo, and she's said to be still there in Nandigram. She hasn't moved out of Nandigram at all. It is being said since the last 3 days at least. Mamata Banerjee coming out from a house there in Nandigram this time around because it is very, very important for her. And the pressure can be seen immensely on the Chief Minister herself because this is a direct face-off with a former prodigy and now foe, Shubhendu Adhikari, and she is also apparently rescheduled her poll campaigning in North Bengal. Going across to Anuj now. Anuj, well, that's been confirmed now. We can see Mamata Banerjee still there in Nandigram. और ये क्षेत्र में बाहर निकल रही है दीदी के फिलहाल ये तस्वीर Anuj, if you can hear me, Nandigram politics is still heating up. Shubhendu Adhikari, who continues to survey booth from booth ever since the morning he cast his ballot, but Mamata Banerjee is there too. In that blue car, you can see her sitting there in the passenger seat, and Mamata Banerjee, the road is being made clear for her, for a cavalcade to pass. Mamata Banerjee very much present there in Nandigram. Anuj. Yes, Mamata Banerjee is very much there in the Nandigram, and the visuals are speaking themselves. We are showing the visuals of Mamata Banerjee, who now will be in the constituency, as we do understand, we are seeing since from the morning that at 7:35 this was Shubhendu Adhikari who casted his vote, and after casting the vote, Shubhendu Adhikari is revolving and moving around from one booth to the another booth, and the kind of incidents that are coming in from the ground is something I believe which is making Mamata Banerjee also to move into the ground, because earlier our program was scheduled for North Bengal, but this was rescheduled as we broke it earlier itself that Mamata Banerjee has rescheduled the program. She is going to be here in Nandigram itself. From last 3 days we are continuously seeing that Mamata Banerjee is focusing in Nandigram, because when we are talking about Nandigram, then yes, Nandigram is the most crucial, most important seat, and this is about the stake of the duo, whether being चेतावनी शुभेंदु अधिकारी को। शुभेंदु अधिकारी कहते हैं, दीदी मैं 50,000 वोटों से अगर आपको नहीं हराया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इस तरीके की बड़ी बातें यहाँ पे हो रही है, और ये काफिला जो आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे टीवी स्क्रीन पर, वो तस्वीरें नंदीग्राम की है, उस नंदीग्राम की जो अपने आंदोलन के लिए जाना जाता है। ये नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी के दबदबा के लिए जाना जाता है। एक वक्त में शुभेंदु अधिकारी यहाँ पे इस तरीके से सक्रिय थे, जब दीदी को मालूम चला तो दीदी ने उनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी, पूरे जंगल महल का प्रभार सौंप दिया। लेकिन जब राजनीति में तलखियां बढ़ी दोनों के बीच में, जब भाईपो आ गए यानी दीदी के भतीजे आ गए, जब दीदी नहीं रही बुआ बन गई, उसके बाद भाईपो के वजह से शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मेरी अनदेखी हो रही है, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता हूं। बीजेपी के लिहाज से अगर मैं आपको बड़ी बात बताऊं तो बीजेपी 2019 में जब 18 सीटें लेकर आती है तो बीजेपी को इस बात की तलाश होती है कि बड़ा चेहरा, जनाधार वाला चेहरा पश्चिम बंगाल में कौन हो सकता है। ये तलाश पूरी होती है शुभेंदु अधिकारी के तौर पर। शुभेंदु अधिकारी पर भरोसा किया बीजेपी ने, शुभेंदु अधिकारी को लेकर बीजेपी ने हमेशा कोशिश की कि वो आ जाए। उसके बाद जब शुभेंदु अधिकारी आ गए तो बीजेपी को लग गया कि पूर्वी पश्चिमी मिदनापुर, बांकुड़ा, पुरुलिया, मुर्शिदाबाद का कुछ हिस्सा और ये जो इलाका है इसमें जनाधार वाला एक परिवार ऐसा अधिकारी परिवार जिसमें शिशिर अधिकारी हो, इसके अलावा शुभेंदु के जो भाई है, ये सभी राजनीति में इनका अपना दबदबा है, इनका अपना वर्चस्व है, इनकी अपनी पकड़ है, इनका अपना जनाधार है, और इसी जनाधार को बखूबी समझते हुए बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को अपने साथ लिया। और अब ये कांटे की टक्कर, जहां ममता बनर्जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि दीदी का अगला फैसला क्या होगा ये भगवान को शायद मालूम है, किसी इंसान को तो मालूम होने से रहा। दीदी ने सीधे नंदीग्राम में आकर अनाउंस कर दिया कि मैं इसी नंदीग्राम से अपने धूर विरोधी को चुनौती दूंगी, मैं शुभेंदु अधिकारी को चुनौती दूंगी, मैं हर हाल में जीतूंगी यहाँ से। ममता बनर्जी के लिहाज से अगर इस पहलू को समझे तो ममता बनर्जी नंदीग्राम को लेकर कहती हैं कि मैं नंदीग्राम को नहीं भूल सकती हूँ, मैं अपना नाम भूल जाऊंगी, मैं नंदीग्राम नहीं भूलूंगी। नंदीग्राम मेरे लिए सौभाग्यशाली है। नंदीग्राम वो जगह है, जब मैंने तृणमूल कांग्रेस का गठन 1998 में किया तो जब उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करनी थी तो सबसे पहले मैंने नंदीग्राम को चुना। तो इस तरीके से भावनात्मक तौर पर जुड़ाव है
ममता बनर्जी का। लेकिन अगर दूसरे खेमे की बात करें, हम बीजेपी के खेमे से बात करें, तो बीजेपी की तरफ से ये दावा और ये दलीलें, शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ये बातें कि मैं यहाँ का भूमिपुत्र हूँ। जब हम यहाँ पे, मैं लगातार यहाँ पे अलग अलग जगहों पे जाती रही, नंदीग्राम के दोनों हिस्सों में जाती रही, वहाँ लोगों से जब बात किया तो वो भूमिपुत्र कहते हैं। वो कहते हैं कि भूमिपुत्र हैं, ये बाहरी कैंडिडेट नहीं है, हमारे बीच के हैं और यही वजह है कि हम इनको मौका देना चाहते हैं। हालांकि दीदी के भी जो समर्थक हैं वो भी उनके बारे में कुछ अलग तरीके की बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि हमें दीदी को हम नहीं भूल सकते हैं, ये वोटर का दावा है। लेकिन आज वोटर किस तरफ उसका रुख है, इसके लिए चुनाव आयोग ने जो तारीख तय की है वो 2 तारीख है, उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल ये काफिले की तस्वीरें आपके सामने। So 2 visuals, they're live Nandigram for after many days now. We can actually see Mamata Banerjee, then those first pictures playing out only on Republic as she gets into this car because she continues to stay at her ward in Rayapara during the polls, and now she will be serving the booth herself as she is continuously staying put in Nandigram itself. It is a high stakes battle there as we continue to put forth more live coverage from the ground there in Nandigram. We have to slip into a short break for now.